Wilkinson catalyst is what these atoms are group of atoms which containing what rhodium, triphenyl and chloride is there. So what is the name? Complex molecule what RHCl3 PPH thrice. So that is what RHCl PPH thrice. So this is the rhodium containing complex compound, rhodium containing complex compound PPH3 thrice. Cl is there, PPH3 size, this PPH3, यस कितना है थ्राइस है, PPH3 थ्राइस, दिस इज द क्लोरो. तो अब यहाँ पे अल्फाबेटिकली जाना है. देखो क्लोरीन है, उसके बाद ट्राइफेनिल है. तो यहाँ पे ट्राइफेनिल, तो इसको 3 है ना, सिमिलर लिगेंड है ना, सिमिलर लिगेंड इज देयर. सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज व्हाट ट्राइफेनिल फॉस्फीन इज देयर. Triphenyl phosphine, and the most important part is what triphenyl phosphine. So the name of the compound is what क्लोरो. तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल से हमको जाना है. ये क्लोरो है ना, ये क्लोरो है और ये ट्राइफेनिल है. हम यहाँ पे फेनिल के बात करेंगे. तो यहाँ पे C पहला है, P बाद में है, इसका नाम क्या आएगा? सो दैट इज व्हाट क्लोरो ट्राइफेनिल. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट 3 सेम है, इसको बोलेंगे ट्रीस. Trees what? Trees triphenyl. So that is nothing but triphenyl phosphine is there. Triphenyl इसका बात हुए phosphine, triphenyl phosphine. So what is the name? This is the rhodium. This is the metal rhodium. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2. So this is what Wilkinson's catalyst. What is the catalyst? Wilkinson's catalyst. The name of the catalyst is what Wilkinson's catalyst. So it is used to the polymerization of alkene. इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? Polymerization of alkene in the part of the organic chemistry. So the next example we will take this NaBH4. That is also, this is what one of the reagent. What is the name? Na सोडियम BH4. लेकिन यहाँ पे हम इसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में, आई थिंक द एग्जांपल नंबर इज 9th one और 10th one. So that is what a sodium. You can take this is the first one is sodium है मेटल. तो पहला क्या करना है? सोडियम लेना है. So how many hydrogen atom is what sodium 4 times. ठीक है, this is the sodium 4 times. That's why this is the sodium tetrahydrido. Sodium tetrahydrido borate. So I guess it is borate is here. So can this presents this +1 and this -1 borate. So that is oxidation state. I am writing here the oxidation state. What is the name? Sodium tetrahydrido borate. Oxidation state है इसका +3. So another name complex compound. This is if you have it. This is the more than ones. If you can take this is the iron atoms. So I think example number 10 Fe. This is the center atom EnO2, FeNO2, NH3 twice again FeNO2 NH3 twice chlorine और ब्रैकेट के बाहर Br. अब यहाँ पे देखना है कि लिगेंड, डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड यहाँ पे है ना. सो दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिगेंड. यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे अमाइन है, यहाँ पे क्लोरो है. अब अल्फाबेटिकली से जाना है. अमाइन, तो कौन सा अमाइन है? डायअमीन. वी कैन से डायअमीन क्लोरो है ना, अल्फाबेटिकली ABC. डायअमीन क्लोरो नाइट्रो. सो दैट इज NO2. आई एम राइटिंग इसका यहाँ पे जरूरत नहीं ऐसे लिखने की, तो यहाँ पे NO2 ऐसा लिखो. डायअमीन क्लोरो नाइट्रो. डायअमीन क्लोरो नाइट्रो. द नेम ऑफ कंपाउंड डायअमीन क्लोरो नाइट्रो. सो दैट इज व्हाट iron. Fe iron. We can say this iron. In bracket is the oxidation state. So this is the two oxide. This again what? Bromide. What is that? Bromide. Iron है, बाद में लिखो. That is what a bromide. BROMIDE. So this is the nomenclature of more than one ligand. Different ligand is present. More than different ligand is present in this compound. So again we will go to another types of the example. That is what bridge ligand. अब यहाँ पे ब्रिज लिगेंड है, तो क्या करना है? सो नेम ऑफ द कंपाउंड, द कॉम्प्लेक्स having the bridge complex. We know that bridge ligand, acidic ligand, flexidentate ligand, ambidentate ligand. अब यहाँ पे हमने जो एक एग्जांपल देखा था, कौन सा?
ऐसा था, है ना, कौन सा है, Fe था, उसके बाद में you can iron is there, so iron is there, NO2 is there, again Cl is there and NH3 is there, ऐसा एग्जांपल था। अब याद रखना है जब NO2 था, है ना, हमने ऐसा नाम लिखा नाइट्रो, व्हाट इज द नेम इज व्हाट, यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, अगेन दैट इज Fe NH3 Fe NO2 Fe NO2 NH3 टेकन ट्वाइस और यहाँ पे Cl और यहाँ पे हमने इसे Br लिया। ओके, नाम क्या लिखा था हमने यहाँ पे अभी, इसका डायमीन कहा था, डायमीन, उसके बाद डायमीन क्लोरो नाइट्रो। हाँ, ये मुझे बताना था, यहाँ पे नाइट्रो के बाद यहाँ पे कैपिटल में ब्रैकेट में N लिखना है, उसके बाद आप Fe लिखो, आयरन लिखो, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट और ब्रोमाइड, ऐसा हमने लिखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट उसके बाद में ब्रोमाइड, ऐसा हमने लिखा था। अब याद रखना है कि जब हम यहाँ पे NO आता है, Cn आता है, Cn आता है, CNO आता है, ऐसे लिगेंड जब कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होंगे, ऐसे टाइप्स के लिगेंड कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होंगे, तो आपको एज अ पार्ट, वी नो दैट दिस इज द पार्ट ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड का पार्ट है, कौन सा पार्ट है, एम्बिडेंटेड लिगेंड का पार्ट है। तो याद रखना है NO2 है तो N पहला लेना है, यहाँ पे ONO भी हो सकता था, ONO भी हो सकता था, दिस इज ऑल्सो नाइट्रो, बट यहाँ पे आपको इस ब्रैकेट में O लिखना पड़ता था, है ना, याद रखना है, ONO है O लिखो, Cn है ब्रैकेट में C लिखना पड़ेगा, NC है ब्रैकेट में N लिखना पड़ेगा, तो दिस इज द पार्ट फ्रॉम एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे ब्रिज कॉम्प्लेक्स की, ब्रिज लिगेंड की। जब ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, सपोज वी आर हैविंग द Fe atom, this is what Fe, the central atom Fe is there, you can take this OH, this is the OH, and here this is the CO. There is a how many CO? There is a 6 CO ligand. So what is the name of the complex? First of all, यहाँ पे इसको म्यू से स्टार्ट करना है, नॉमेनक्लेचर, ऐसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर म्यू से स्टार्ट करना है। गौर से देखना है, यहाँ पे ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, म्यू, म्यू कौन है, जो ब्रिज है पहला ले लो, दो है, डाई बोलो, म्यू डाइहाइड्रोक्सी, म्यू डाइहाइड्रोक्सी, नेक्स्ट व्हाट, म्यू डाइहाइड्रोक्सी, लिगेंड कितने अटैच है यहाँ पे, और दिस वाला 6 लिगेंड, हेक्सा, हेक्सा क्या बोलेंगे, कार्बोनिल एज अ लिगेंड, हेक्सा कार्बोनिल, डाई, डाई क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे मेटल है, फिर दो, डाई आयरन, डाई आयरन इन ब्रैकेट, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, so this is the complex mu dihydroxy hexacarbonyl diiron, hexacarbonyl diiron. So we will discuss the next example here. Instead of OH we can take CO and CO is here, so what is the name, mu dihydroxy, यहाँ पे डाइकार्बोनिल बोलना पड़ेगा, mu dicarbonyl hexacarbonyl diiron. If you have the next example number second one, this bridge complex, then example number third, you can take this CO and CO is here. अब यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, ट्राई, म्यू ट्राइकार्बोनिल बोलो, हेक्साकार्बोनिल डाइआयरन, मेटल चेंज करो कोई बात नहीं, CO ले लो, यहाँ पे डाइकोबाल्ट लिखना पड़ेगा, डाइकोबाल्ट। So again the same, the another types of the example, if you can take this one, instead of Fe, this is what, instead of Fe and CO, you can take rhenium, rhenium atom and rhenium. So that is the part of these types of the complex. ऐसे example भी हम यहाँ पे solve कर सकते हैं. So these types of the example is nothing but. So another example will take this one, iron containing. Interesting example है, देखो यहाँ पे CO लेना है, यहाँ पे CO लेना है. This is again Fe और यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप लेना है, ये CO लिया तो यहाँ पे लेना है साइक्लोपेंटाडाइनिल आयन, साइक्लोपेंटाडाइनिल आयन. So this was a cyclopentadienyl ion. So this is the cyclopentadienyl ion is that this 5-member ring is there. Okay, यहाँ पे CO.
अब देखो इसका नाम क्या आएगा, स्टडी, नो डाउट दिस इज द ब्रिज कॉम्प्लेक्स, सो म्यू, तो म्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो व्हाट इज दैट, म्यू डाई। अब देखो म्यू कौन है, ब्रिज कॉम्प्लेक्स लेना है, एग्जांपल नंबर 4 ऑफ द ब्रिज कॉम्प्लेक्स, म्यू डाई कार्बोनिल, म्यू डाई कार्बोनिल, म्यू डाई कार्बोनिल, डाई कार्बोनिल अगेन, डाई डाई कार्बोनिल अगेन, सो म्यू डाई कार्बोनिल, म्यू डाई कार्बोनिल, ये कॉम्प्लेक्स का, ये ब्रिज का है, म्यू बोला इसीलिए, ब्रिज का है, म्यू इसीलिए बोला, म्यू इसीलिए लिखा क्योंकि ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, म्यू डाई कार्बोनिल, डाई डाई कार्बोनिल अगेन, दिस इज द साइड अटैचमेंट फॉर द लिगैंड इज for the ligand of the side attachment, mu dicarbonyl, here dicarbonyl, so cyclopentadienyl, so that is what, again cyclopentadienyl, so that is nothing but again diiron in bracket 0, so this is what a example of bridge complex, ये हमारे